السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام اور اس لائیو پروگرام میں شرکت کرنے والے ہمارے دیندار، دین پسند، علم دوست احباب اور ساتھیوں اور دیگر سامعین کرام و خواتین ملت، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت کے ساتھ نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے آپ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتوں کا آپ سب کے لیے انتظام فرمایا ہے، ان ساری نعمتوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اس میں برکت دے، آمین۔ سامعین کرام اور شاہدین عظام، کل کے لائیو پروگرام میں نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور اسی سے آیت الکرسی کی چند فضیلتیں میں نے بتلانے کی کوشش کی تھی، اور بہت سارے بھائیوں کا یہ اصرار ہے اور میرا بھی دل کہتا ہے کہ خاص طور پر ان چند صورتوں کی فضیلت آپ کے سامنے میں بیان کروں جن کی خصوصیت کے ساتھ فضیلت احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو وقت کے حساب سے سورہ ملک کی فضیلت اور معوذتین کی فضیلت، اور اگر وقت رہا تو سورہ اخلاص کی فضیلت میں بتلانا چاہتا ہوں، اس امید، اپیل اور مؤدبانہ گزارش کے ساتھ کہ غور سے سنیں گے، کوئی سوال ہوگا تو کریں گے اور اسے دوسروں تک پہنچا کر خیر پھیلانے والے بنیں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے سنیں سورہ ملک کی خصوصی فضیلت۔ یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں ہے کہ پورے قرآن کی فضیلت ہے، قرآن کی ہر آیت کی فضیلت ہے، قرآن کے ہر حرف کی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ہر انداز سے دنیا کی ساری طاقتیں اگر ہمارے اللہ رب العالمین کے اس آخری کلام کو جو پوری انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، اگر ختم کرنا چاہے تو نہیں ختم کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کو بڑی فضیلت، خصوصیت اور برتری عطا فرمائی ہے، اور اس کی ایک خصوصیت میں سے، سورہ ملک کی ایک فضیلت میں سے، بہت ساری فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ سورہ ملک روزانہ جو اس کی تلاوت کرے گا سونے سے پہلے، تو یہ سورہ ملک اس کے لیے روز قیامت دربار الہی میں اس کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے شفاعت کرے گی۔ اور سورہ ملک کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ منجیہ بھی کہا ہے، یعنی قبر کے عذاب سے نجات دینے والی سورت۔ تو آئیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، اور حدیث کے بیان کرنے والے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سورۃ من القرآن 30 آیہ، قرآن کے اندر ایک ایسی سورت ہے جس کے اندر صرف 30 آیتیں ہیں، 30 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ اللہ تعالی کے یہاں اس آدمی کے لیے شفاعت کرے گی جو آدمی اس سورے کو ڈیلی پڑھتا ہے۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخش دے گا، اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور وہ سورہ ملک
तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वाली सूरत है। और ये रिवायत सुनन तिरमिज़ी की है और मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को हसन और सही करार दिया है। तो मेरे साथियों, सूरह मुल्क वो सूरा है जो अपनी तिलावत करने वालों के लिए रोज़े क़ियामत रब्बे कायनात के दरबार में बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए शिफ़ाअत करेगी। चुनाचे हमें चाहिए कि हम सोने से पहले, हर रात सोने से पहले इशा के बाद इस सूरह मुल्क की तिलावत कर लिया करें। अगर ज़बानी याद है तो ज़बानी, वरना कुरान मजीद को देखकर, क्योंकि ये बहुत बड़ी अज़मत है, बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ा मकाम है। वो बड़ा ही सआदतमंद और खुशनसीब होगा अल्लाह का बंदा और अल्लाह की बंदी जिसके लिए अल्लाह का कलाम सूरह मुल्क उसकी मग़फ़िरत के लिए, उसकी बख्शिश के लिए, उसकी निजात के लिए सिफारिश करे। और इसी तरीके से हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं कि कान ला अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान ला यनामु हत्ता यक़रा अलिफ लाम मीम तंज़ील व तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। ये रिवायत सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने सही सुनन तिरमिज़ी के अंदर इसे सही करार दिया है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था, आपका मामला ये था कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले अलिफ लाम मीम तंजील उस सजदा वाली सूरत और सूरह मुल्क यानी तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वाली सूरत की तिलावत फरमा लिया करते थे। डेली आपका ये मामूल था। ये तो सूरह मुल्क की फजीलत। आइए सूरह मुल्क की दूसरी फजीलत और खुसूसियत हम और आप ध्यान से समाअत फरमाएं। सूरह मुल्क के बारे में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये कब्र के अजाब से, कब्र के यातना से यह सूरत अल्लाह की इजाजत से निजात दिलाने वाली है। अजाब कब्र, कब्र का अजाब जिसका तस्वुर करके एक मोमिन मर्द और मोमिना औरत का दिल कांप उठता है, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुनिया की सारी लज्जतें कब्र के अजाब को याद करने वाला अल्लाह वाला भूल जाता है। और हम में से हर आदमी, हर मर्द, हर औरत ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला जो आखिरत की पहली मंजिल है, जहां बेड़ा पार हो गया तो आगे भी बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचा ले, ये हम सब की तमन्ना, हम सब की इच्छा और हम सब की दुआ और प्रार्थना है। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और वो रिवायत आप सुनिए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूरत तबारक हियल मानिआ मिन अदाबिल कब्र। सूरत तबारक जिसको सूरह मुल्क कहा जाता है, 29वें पारे की पहली सूरह है। यह कब्र के अजाब से छुटकारा दिलाने वाली सूरत है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत को रिवायत किया है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिलतुल अहादीथ सहीहा के अंदर इस रिवायत को सही करार दिया। तो सूरह मुल्क ये वो सूरत है जो इंसान को कब्र के अजाब से निजात दिलाएगी। लिहाजा मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि सूरह मुल्क रोज़े क़ियामत हमारी मग़फ़िरत के लिए शिफ़ाअत करे, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से बचा ले, तो हमें और आपको चाहिए कि सूरह मुल्क की तिलावत रोज़ाना कर करके तब हम सोया करें। और अगर आदमी बराबर कंटिन्यू आदत बना ले, अपने रूम में कुरान रखे और डेली तिलावत करता रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सूरह हिफ्ज़ भी हो जाएगी और 2-4 दिन के बाद बार बार पढ़ना आसान भी हो जाएगा। मेरे भाइयों और साथियों, आइए
कुल या अय्युहल काफिरून की फजीलत हम सुने। सूरह काफिरून बड़ी छोटी सूरत है, इसे हमें याद कर लेना चाहिए। इसका तर्जमा और तफसीर भी हमें पढ़ लेना चाहिए। मेरे भाइयों, सूरह मुल्क की फजीलत के बारे में बतलाते हुए जहन से एक बात निकल गई, और वो ये है, ये इतनी अजीम सूरत है जिसका तर्जमा और तफसीर हमें पढ़ना चाहिए, यकीनन पढ़ना चाहिए। बहुत मुफीद बातें इसके अंदर रखी गई हैं। सूरह काफिरून की फजीलत के बारे में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि सूरह काफिरून 1/4 कुरान के बराबर है। यानी अगर कोई शख्स 4 मरतबा सूरह काफिरून पढ़ ले तो उसको उतना सवाब मिलेगा जितना पूरे कुरान में से 1/4 तिलावत करने का अजर सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि आका फरमाते हैं, मन क़रअ क़ुल या अय्युहल काफिरून उदिलत लहू बिरुबइल क़ुरआनी व मन क़रअ क़ुल हुवल्लाहु अहद उदिलत लहू बिथुलुथिल क़ुरआनी। और ये रिवायत सुनन तिरमिदी की है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही सुनन तिरमिदी की जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 158 के अंदर हसन कहा है। गोया यह रिवायत हसन है। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ ले तो उसको उतना सवाब मिलेगा जितना 1/4 कुरान का पढ़ने से सवाब मिलेगा। और कुल हुवल्लाहु अहद ये 1/3 कुरान के बराबर है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद ये 1/3 कुरान के बराबर है, और कुल या अय्युहल काफिरून 1/4 कुरान के बराबर है। अब मेरे भाइयों साथियों, जरा सोचें कि कुल हुवल्लाह और कुल या अय्युहल काफिरून की कितनी फजीलत और कितनी बरकत है। इसे हमें याद कर लेना चाहिए और इसे हमें बार बार पढ़ना चाहिए। यहाँ ये बात भी वाज़ेह है कि ये मतलब नहीं है कि कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिए तो पूरा कुरान आपने पढ़ लिया, वो तिलावत अलग है। यानी इसका अजर और सवाब अल्लाह ताला ने इतना रखा है कि कुल या अय्युहल काफिरून के पढ़ने से 1/4 कुरान के पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है, और सूरह इखलास पढ़ने से 1/3 कुरान के बराबर सवाब मिलता है। मेरे भाइयों साथियों, सूरह इखलास की फजीलत कुल हुवल्लाहु अहद की फजीलत में बहुत सारी हदीसें वारिद हुई हैं। चुनाचे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ने एक आदमी से बार बार कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करते हुए सुना। कान धरेंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन एक आदमी को बार बार सूरह इखलास की तिलावत करते हुए सुना। वो बार बार उनको उस सूरह इखलास को कुल हुवल्लाहु अहद को बार बार दोहरा रहे थे। सुबह हुई तो वो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, और इस कहानी को अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, वल्लदी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, इन्नहा लतअदिलु सुलुसल कुरान, ये सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान के बराबर है। और बुखारी शरीफ के अल्फाज इस तरह हैं, अन्ना रजुलन कामा फी ज़मनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खड़ा हुआ और वो सुबह सादिक तक सूरह इखलास की तिलावत करता रहा, कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करता रहा। उसके अलावा किसी और सूरा की तिलावत नहीं की, खाली सूरह इखलास की तिलावत करता रहा पूरी रात। तो सुबह जब हुई
तो वो आदमी अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फिर ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। और अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से पता चलता है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबे किराम से पूछा उभारने के लिए कि क्या तुम लोग 1/3 कुरान की तिलावत नहीं कर सकते हो? क्या आप लोग 1/3 कुरान की तिलावत रोज़ाना नहीं कर सकते हो? सहाबे कराम ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ युक़रअ थुलुथुल कुरान, कि पूरे कुरान का 1/3 हिस्सा कैसे पढ़ना मुमकिन है, कैसे पढ़ा जा सकता है? तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद थुलुथुल कुरान, कुल हुवल्लाहु अहद ये कुरान का 1/3 हिस्सा है। और ये रिवायत मेरे भाइयों सही मुस्लिम की रिवायत, हवाला करना, सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह ये जानता था कि सारे बंदे कुरान की तिलावत नहीं सीख पाएंगे। अल्लाह ये जानता है कि बंदों के सामने बहुत सारे वाजिबी ज़रूरियात हैं। दिन में थके हारे रहेंगे, कारोबार में मशगूल रहेंगे, रात में दिन की थकावट की वजह से बिस्तर पे आते ही नींद आ जाएगी। तो अल्लाह ताला ने करम करते हुए, मेहरबानी करते हुए, फजल और एहसान करते हुए सूरह इखलास को 1/3 1/3 कुरान के बराबर करार दिया कि अगर कोई शख्स सूरह इखलास की तिलावत कर ले, बाज़ रिवायतों में आता है कि 3 बार, सूरह काफिरून 4 बार और सूरह इखलास 3 बार तिलावत कर ले, तो गोया उसे सूरह काफिरून की 4 बार तिलावत करने की वजह से, सूरह इखलास की 3 बार तिलावत करने की वजह से 1/3 और 1/4 कुरान की तिलावत के बराबर सवाब होगा। मेरे भाइयों, कुर्बान जाओ अल्लाह के कलाम पर। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या था, जरा देखो मेरे भाइयों साथियों। सोते वक्त अगर हमने सूरह इखलास को पढ़ लिया, सूरह काफिरून को पढ़ लिया, सूरह फलक को पढ़ लिया, सूरह नास को पढ़ लिया, तो मेरे भाइयों मजमूई तौर पर इन चारों सूरतों के पढ़ने का लाभ और फायदा ये मिलेगा कि शिर्क से अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा, शैतान से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा, जादू टोने से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा, और ये चीजें अल्लाह ताला आपके लिए बॉडीगार्ड और मुहाफिज और निगरां बना देंगे। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था, जरा सुनिए और गौर कीजिए। जहां अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल का पता चलता है, वहीं पर इन सूरतों की फजीलत का इल्म होता है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था, और ये कौन बतला रही है? माई आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ काम बाहर हुआ करते थे जिसको सहाबे कराम देखते थे और सुनते थे, और कुछ निजी काम अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ करता था। आपका कुछ खास अमल हुआ करता था जो घरों के अंदर होता था, और घरों के अंदर का अमल अज़वाज मुतहरात, आप सबकी आपकी पाक बीवियां, हम सब की पाक माएँ देखती थी और बयान करती थी। तो हजरत आयशा यहाँ बहुत सारी नसीहत मिलती है। एक बात तो है कि घरों में कुछ नफली इबादत हमें करना चाहिए एहतमाम के साथ, अजर सवाब हासिल करने की नीयत से और नबी की सुन्नत को जिंदा करने की नीयत से। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में बिस्तर पर सोने के लिए तशरीफ लाते, तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हथेलियों को उठा लेते। देखिए, जब बिस्तर पर सोने के लिए आते तो अपने दोनों हथेलियों को उठा लेते और उसमें थुक थुकाते, ठु ठु ठु, और फिर उसके बाद 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ते और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते। फिर उसके बाद इस हाथ को आगे से लेकर के पूरा
जहां तक आपका हाथ आगे पहुंचता था और पीछे, ये आप अपने मुबारक जिस्म पर फेर लिया करते थे और अपने चेहरे पर पहले आगे फेर लेते थे पूरे जिस्म पर, पीछे फिर अपने चेहरे पर और अपने सर पर फेर लेते थे, और ये पूरे बदन को जहां तक आपका हाथ पहुंचता था फेरते थे। और रिवायत के अंदर है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा 3 बार किया करते थे। ये सही बुखारी की रिवायत है। ऐसा अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार किया करते थे। लिहाजा मेरे भाइयों, जहां इसमें अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेहतरीन अमल मालूम हुआ, वहीं पर इन सूरतों की फजल मालूम हुई और तरीका भी मालूम हुआ। जब हम बिस्तर पर आए तो हम अपने हाथ को उठाएं और उसमें 3 बार थुथुआएं, थू थू थू, फिर औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह करके कुल हुवल्लाहु अहद, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, फिर अपने पूरे बदन पे आगे से और पीछे से ये सब फेर लें, फिर चेहरे पर और अपने सर पर फेर लें। इससे हमारी हिफाजत हो जाएगी। रात को डरेंगे नहीं, ख्वाब नहीं आएगा, सपना नहीं आएगा, शर नहीं आएगा, शैतान का हमला नहीं आएगा, जादू का असर नहीं होगा। जितना हमारा ईमान और अल्लाह के रसूल, अल्लाह के इस कलाम पर ईमान और रसूल के इस कलाम पर जितना ईमान है, उतना ही मेरे भाइयों साथियों। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मेरे भाइयों, तीसरी फजीलत आप सुने। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारी सूरतों को नमाज के, फर्ज नमाज के बाद भी पढ़ा करते थे। हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं, अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक़रा बिल मुअव्विदाति दुबरा कुल्ली सलाह, दुबरा कुल्ली सलाह। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुअव्विदात पढ़ने का हुक्म दिया है हर नमाज के बाद। और मुअव्विदात में बहुत सारे मुफस्सिरीन ने कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास को भी शामिल किया, क्योंकि हदीस के अल्फाज मुअव्विदात, मुअव्विदतैन इस रिवायत के अंदर नहीं बल्कि मुअव्विदात है। अल्लाह के रसूल हर नमाज के बाद ये पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। और ये रिवायत अबू दाऊद की है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन अबी दाऊद की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 417 के अंदर इसको सही करार दिया है। मेरे भाइयों, इन सूरतों की चौथी फजीलत अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इन सूरतों को सुबह और शाम पढ़ लिया, सुबह यानी फजर के बाद, शाम यानी असर के बाद, और अगर किसी मशगूलियत की वजह से न पढ़ सके तो मगरिब के बाद, अल्लाह के रसूल का फरमान सुनिए। इन सूरतों की फजीलतों के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने सुबह और शाम इन सूरतों को पढ़ लिया तो ये सूरतें अल्लाह की इजाजत से उसके लिए हर चीज की तरफ से किफायत करेंगी और काफी होंगी। हर चीज, आप सोच ले, हर चीज से। चुनाचे अब्दुल्लाह बिन खुबैब रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि हम लोग जरा गौर से सुनिएगा हदीस का तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन खुबैब रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि एक रात, जिस रात को बड़ी जबरदस्त बारिश थी और बहुत ही जबरदस्त अंधेरा भी था, हम लोग निकले। और क्यों निकले थे घरों से? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले थे। बारिश का मौसम था, मूसलाधार बारिश हो रही थी, घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था, रात मुकम्मल तारीख थी। हम लोग अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश के लिए निकले। किस लिए? ताकि आए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ाएं। नमाज का इशा का वक्त हो गया है, आए आप इमामत फरमाएं। कहते हैं अल्लाह के रसूल का इंतजार करते करते फिर हम लोग तलाशने के लिए निकले कि आका गए कहाँ, कोई खतरा तो नहीं हो गया। अब बारिश का मौसम था और रात अंधेरी थी। हम लोगों ने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लिया, तलाशते तलाशते पा लिया। तो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने कहा, कहो कहो। कहते हैं हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, कहो।
साहबी कहते हैं हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, क्या कहूँ, या अल्लाह के रसूल ने जाहिर नहीं किया था। हाँ, तो फिर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैंने पूछा मा बोलो, अल्लाह के रसूल आप कह रहे कहो, 2 बार आपने कहा, तो मैं क्या कहूँ, बड़े अदब के साथ पूछते हैं साहबी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कहो कुल हुवल्लाहु अहद और मुअव्विदतैन यानी कुल औदु बिरब्बिल फलक और कुल औदु बिरब्बिन नास हीना तुमसी व हीना तुस्बिह, जब तुम शाम करो और जब तुम सुबह करो, जब तुम शाम करो शाम के वक्त और सुबह के वक्त 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, 3 मरतबा कुल औदु बिरब्बिल फलक, 3 मरतबा कुल औदु बिरब्बिन नास पढ़ो, 3 मरतबा हर सूरा, तकफी का मिन कुल्ली शय, ये तुम्हारे लिए हर चीज से किफायत होगी, हर चीज के लिए ये तुम्हारे लिए काफी हो जाएंगी। अबू दाऊद की रिवायत है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही सुनन अबी दाऊद के अंदर इस रिवायत को सही करार दिया। तो इससे पता चला कि फजर के बाद और असर के बाद इन तीनों सूरतों को खास तौर पर 3 बार पढ़ना चाहिए। हर चीज से बचाओ, हर चीज से सूरतें अल्लाह की इजाजत के बाद किफायत करें, और बाज नमाज और दिगर फर्ज नमाजों के बाद भी चाहे तो आप 1 बार पढ़ें और चाहे तो इससे ज्यादा पढ़ें। मेरे भाइयों साथियों, आपको बतलाऊं कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास की फजीलत बहुत बड़ी फजीलत है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस सुन लीजिए। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास की फजीलत के बारे में हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस सुन लीजिए। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज की रात हमारे ऊपर ऐसी सूरन ऐसी आयतें नाजिल की गई हैं कि उस जैसी आयतें इससे पहले कभी नहीं उतारी गई हैं। और वो क्या है? कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। ये कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास की फजीलत सुनिए कि अल्लाह के रसूल अकरम से फरमाते हैं कि आज की रात हमारे ऊपर ऐसी आयतें उतारी गई हैं कि इससे पहले ऐसी आयतें नहीं उतारी गई हैं, और वह है कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दो पहले अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नातों और शैतानों से, नजर बद वगैरह से अल्लाह से पनाह मांगते थे। लेकिन जब कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास जब अल्लाह ताला ने उतार दी तो इसी को पढ़ करके आप दम करते थे। जादू से परेशान लोगों पर, नजर और टोना से परेशान लोगों पर, अपने जिस्म पर शैतान के हसद से बचने के लिए, नजर बद से बचने और बचाने के लिए, जादू से बचने और बचाने के लिए, शैतानी वसवसे से बचने और बचाने के लिए, इन सारी चीजों से बचने के लिए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ करके दम किया करते थे। पहले अल्लाह के रसूल पनाह मांगा करते थे जिन्नातों से और लोगों के नजर बद से। लेकिन जब मुअव्वज़तैन कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास उतर गई तो अल्लाह के रसूल हर बीमार पर इसको पढ़ते थे। चाहे जादू वाला बीमार हो, चाहे नजर बद वाला बीमार हो, या कोई दीगर जिस्मानी बीमारी का बीमार हो, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ करके उसके ऊपर झाड़ फूक किया करते थे और अपने ऊपर तो पढ़ते थे। इसी तरीके से हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम लोग एक मौके पर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रहे थे। मकाम जहफा और अबवा, ये मक्का से करीब है किकरा पर, कि अचानक बहुत तेज तुंद आंधी आई और बहुत ही अंधेरा था। बहुत तेज तुंद आंधी आई, तूफानी आंधी, और बहुत शदीद और तेज अंधेरा था। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि तेज तुंद इस काली रात, घटाटोप वाली रात के अंदर तेज तुंद हवा चल रही है, आंधी, भयंकर आंधी चल रही है। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ करके पनाह अल्लाह ताला से मांगने लगे, हिफाजत मांगने लगे। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा, या उक़बा
तअव्वद बिहिमा, ऐ उकबा इब्न आमिर, इन दोनों सूरतों को पढ़कर अल्लाह ताला से पनाह मांगो। और क्योंकि जब भी कोई शख्स इन सूरतों को पढ़ करके पनाह मांगेगा तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा, और कोई ऐसी सूरत नहीं है जिन सूरतों को पढ़ करके पनाह मांगा जा सके इन सूरतों के से। तो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों को पढ़ करके पनाह मांगा। चुनाचे मेरे भाइयों, जहाँ हमें सूरह आले इमरान, सूरह बकरा, आयतल कुर्सी की फजीलत मालूम हुई, वहीं पर आज हमने बतलाया कुल या अय्युहल काफिरून, बल्कि कुल या अय्युहल काफिरून के बारे में कि अगर कोई 4 मरतबा रात में सोते वक्त पढ़ ले तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो शिर्क से महफूज रहेगा। तो कुल या अय्युहल काफिरून की फजीलत, कुल हुवल्लाह की फजीलत, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की फजीलत, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की फजीलत, और इन सूरतों को ख़ास तौर पर किन किन वक्त पढ़ना चाहिए, और सूरह मुल्क की फजीलत मैंने आज आप लोगों को बतलाया, इस उम्मीद के साथ कि हम खुद इस पर अमल करें, आप सब भी अमल करें और इसे शेयर करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा।